आज गुरु वैष्णव के आविर्भाव एवं तिरोभाव तिथि। उस उपलक्ष्य में हम लोग वैष्णव के मुखारविंद से बहुत कृपा प्रसाद को प्राप्त किया। उन लोगों ने कृपापूर्वक वैष्णव के गुरुवर्गों के महिमाओं का कीर्तन श्रवण के द्वारा हम लोगों का कल्याण साधन के लिए कुछ व्यवस्था बनाया। क्योंकि सब तिथियों की आराधना होना चाहिए, किंतु गुरु वैष्णव के तिथियों की जो आराधना होता है उसका कुछ अप्राकृत शक्ति संपन्न होता है और उसका कुछ महिमा कुछ अधिक है और कुछ है। साधारण व्यक्तियों के ये बोधगम्य नहीं है। साधारण व्यक्तियों के जन्मदिन या उनका महाप्रयाण के दिन ये शोक और प्रसन्नता के कारण बनता है, किंतु भक्तों के वैष्णव के आविर्भाव कुछ तिरोभाव कुछ और ही है। I just started Mangalacharana. Good. Let me watch. What is that? This is not very comfortable. Can I sit there? After I go up. ज्ञानतिमिरन्दस्य जनञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वचनं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Today, very happy to be with all of you. I offer my Prabhu is here. Nice. Your father also? No. Came along. Okay. Very happy to be with all of you, and I offer my humble Dandavat pranams unto the lotus feet of my Paramaratya Guru Pada Padma. Om Vishnu Pada Paramahamsa Parivrajak Acharya Ashtutara Satasila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Today, the Tirubhav Mahamahotsav, very beautiful festival. Also, my humble Dandavat pranams thousands of times unto the lotus feet of Srila Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj. Today, we are observing Avirbhav Tithi of Srila Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj. About 12 years ago, Srila Vaman Maharaj appeared today at just before 3 o'clock in the morning. And he took our beloved Gurudev with him in Puri. We were present, myself, other Vaishnavas. Just like when Srila Gurudev came in the association of his Guru Parapadma, also Srila Vamana Maharaj was there at the train station waiting for him and brought him to beloved Gurudev, Srila Bhakti Pragyam Kesava Goswami Maharaj. My humble Dandavat pranams also to all the Vaishnavas and Vaishnavis who are assembled here, especially to the Tridandi Gan, the Sannyasi Gan, all the Vaishnavis, and especially our beloved Premananda Prabhu, who is, Maharaj is telling today the appearance day of Sripad Premananda Prabhuji. He is telling. Cheating. No, the sannyasis don't lie. They cheat, but. Yeah. Maharaj is new one is now making a new program. New program. So nice. Maharaj. Very nice. So I don't want to speak a long time, so a few nice points I want to share with all of us. Although it is true, these great personalities, Srila Vamana Maharaj, Srila Gurudev, and all our Guru Parampara, Guru Varga, we cannot live without them. We need so much mercy because we are incapable of making our life successful. We want to be successful, we want to be happy forever, we want to obtain perfection and fully manifest our beauty, our potential, but it doesn't work. Again and again we are baffled because the area that is not there has to be given to sadhu, especially to Sri Guru. Sri Guru is the manifestation, the Kripa Murti of Sri Sachinandana Gaura Hari. Sri Radha Krishna, they want our benefit more than anything. So once we have come to this conclusion that I can only depend on Guru Kripa, then our spiritual journey becomes very peaceful. Divine knowledge, it is there for everyone. But who has the faith to believe in the divine knowledge? Only that aspiring devotee who has agreed now this is only one direction, no more
interest. Yeah, I want to fix all my energy upon the supreme goal of life. So Gurudev is, you may have heard this or not, but he is telling that before anyone is 40 years old, yeah, make up your goal of life. Yeah. After that it is not so easy, because we have become attached to so many comforts in this world, family, bank balance, so many things are there that keep us, yeah, so-called in our comfort zone, yeah, and all are wanting our attention. So make up your mind, Gurudev said, before 40. In other words, yeah, fix our goal. Yeah, what is the supreme goal of life? So how beautiful, although many acharyas are there, and we have also access to their teachings, but only that moment happened to meet such a great saint who's the embodiment of that divine knowledge. When he speaks, it is so powerful that everyone is at once touched by heart. Yeah. Such a great personality, and they don't leave us. Yeah, this is the most beautiful thing. Once we have a relationship with them, even if we have not met them, we can have a relationship with them. The proof is especially our Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. So many have not met him, but their hearts are melting. Yeah. Their eyes are filled with tears when they hear his glories, yeah, when they read his books. This happens continuously. Yeah. My friend who lives in England, you know him all, perhaps, or Sripad Budar Prabhu. Yeah. Today he told me something very nice. He said that they have a lady who cleans their house. She's from Thailand. Her name is Sky. Yeah. So she comes and cleans the house, does some garden work, and she is very religious. She wakes up early in the morning and does meditation. In that tradition, it may be Buddha or something. And she is fascinated when she sees the picture of Gurudev. Yeah. Whenever she comes for her services, she goes to the picture and says, Baba, I am here. Yeah. And before she leaves, she goes to the picture and says, Baba, now I'm going. Yeah. So one day, she forgot to say goodbye. Yeah. So she returned, and again she went to the picture and said, Baba, I am going now. That night, yeah, she had a beautiful dream about Gurudev. Yeah. And he mentioned to her, I really want that you will be my darling daughter. Yeah. And that you chant these holy names of Krishna and make your life perfect. Yeah. So many beautiful things are happening everywhere. And the hearts are touched by these great personalities. Why? Because they live in the reality which is beyond what we perceive. We need definitely the affection, a physical presence of the sadhu, yeah, like-minded devotees, like we are with each other, and we have this beautiful like-mindedness, svayatiya. And for what reason? Only if we all are convinced that this is the supreme goal of my life. Yeah. Make up your heart and mind. What is that? Aradhyo Bhagavan Brajai Satanaya Tadhama Vrindavanam Ramya Kastirupasana Brajavadu Vargena Yakalpitaha Srimad Bhagavatam Pramanamalam Prema Pumarto Mahan. What is that? Prema. It is proven in Srimad Bhagavatam. What type of prema also?
and who we can approach and worship. Yeah. That very beautiful son of Nanda Maharaj, yeah, Brajesa Tanaya, who is so beautiful and so attractive. Why? Because he's always thinking in the love and affection of his devotees. Yeah, he cannot give up Braj. For this reason only, our acharyas, especially Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, has made beautiful commentary to prove this. Yeah. How can you leave a place where you receive the most love and affection? It is impossible. Yeah. When Krishna and Balaram went to Mathura on the request of Akrur, all cowherd boys went. We have heard this many a time, especially Srila Gurudev, giving this point that how can they leave Vrindavan? They go back after killing Kamsa and Kuvalaya Vida and Mushtika, Charu. Yeah, they are, now then they go back. They cannot be without Brajavansis. In another prakost, they may stay. Yeah. Vasudev, Nandana, Devaki Nandana, Balaram and Krishna, but they cannot give up Braja. So that love and affection, that makes Krishna beautiful. Yeah. That makes Krishna attractive. Yeah. We are not attracted to the statues, yeah, the murtis. We are attracted, Gurudev said, and Rupa Goswami Pad reiterates this, the love and affection between Radha and Krishna. Yeah. And now that has manifested in the golden avatara. Yeah. Sri Sachinandana Gaura Hari Ki Jai. Who is that Sri Sachinandana Gaura Hari? Yeah. Gurudev telling all these things. So little snippets we can share with each other because that is an unending ocean. What is the secret there? He is non-different. Krishna himself, Gurudev telling. But he has forgotten that he is Krishna. Because he has become Tadatma with Srimati Radharani. Yeah. Always in Radha Bhav, thinking, experiencing the emotions of Srimati Radharani. Yeah. And what is that? Beautiful. Only one thought, one direction, Ekanishta. Yeah. Srimati Radhika only wants Krishna's happiness. And she wants to give for free. If you want to come, she told Krishna, all these things I have heard from Srila Gurudev. Yeah? If you want my bath, on one condition, I will give it to you. Only on this condition that you distribute freely, yeah? The beauty of my love, yeah, for you, everywhere, yeah, for free. Yeah. That is Sri Sachinandana Gaurari, following the beautiful teachings and the beautiful example, yeah, who is the bhajan guru for all Vaishnavas, Vaishnavis. Without that, we cannot improve our condition. Without the mercy of Sri Sachinandana Gaura Hari, Radha and Krishna are not attainable. Yeah. By his mercy, we can become purified. So all these things Gurudev is giving, and he's continuing to give this. That is proof that he is eternal, that he is with us. Yeah? He has not left us. He is not ordinary person because of karma coming in this world, yeah, like us conditioned souls. Living in eternal reality and always keeping a special interest. Another devotee, she is suffering from rheumatism. Old age coming, yeah, not old age, but still 60 years, so much rheumatism, cannot walk anymore. And Gurudev coming every year to Holy Land and visiting. And this devotee coming in a wheelchair, and Gurudev so much affectionate. We all have experienced meeting Gurudev means at once being completely overwhelmed, yeah, flooded with love and affection. Yeah. His embrace. Everything, yeah, so powerful.
telling to his daughter, "Oh, my dear darling daughter, yeah, Govinda Dasi, yeah, how are you?" She's telling, "My body not good, but I am very happy. Yeah, my soul is very, because I have your mercy." Yeah, and Gurudev said, "Remember always, yeah, when you look in the sky in Holland, if you look in the sky, what do you see? Yeah, clouds, always clouds. Yeah." So Gurudev telling, "I am just like the clouds, always above you, always protecting you, yeah, providing you with nourishment, yeah, like an umbrella, like a ocean of transcendental nourishment. I am always looking after you." So this reality, Gurudev said, I am inviting you to come into this reality, the reality of the soul. And how to obtain that? Only one way, do bhajan, yeah, and find out what is bhajan and how Gurudev telling us these secrets, yeah, bhajan rahasya, yeah. Srila Bhaktivinoda Thakur, non-different, also eternally present. Yeah. If we want, Gurudev said, no harm. I myself, Gurudev said, when I joined my Guru Maharaj's services, I was at once fascinated by Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. And I accepted him in my heart as my Guru. Yeah. Shiksha Guru, Diksha Guru, so many, all are ready to come in our heart if we want. Yeah. Gurudev said, if you want, you can directly communicate with Srila Rupa Goswami Pad. You can ask questions, yeah, if you have any dilemma, and he will be so happy, yeah, to help you. We are Rupa, aspiring, Rupa, Nuga, Vaishnava, Vaishnavis. All this is the conceptions that we are receiving from Gurudev. And the most beautiful thing, then I will, because Maharaj asked me not to speak too long. He said, Srila Gurudev, that when my Gurudev entered Samadhi, no longer physically present, yeah, so many, they collected the items, the prasadi, and it is not bad, it is very good actually. But he said, I was only interested in one thing, he said. That is his mood, his internal conceptions. I only want that. Yeah. That is very amazing. Yeah. If I look, I'm lucky because I like to rest a lot. And in my head there is Seva Kunj's picture with Manjari's Sakhis. So whenever I see that picture, I see this is the heart of Gurudev. Not just the heart, yeah. It is manifesting from his heart. Yeah. What is in the heart is much more beautiful. But this is a manifestation. And so beautiful, so complete, yeah. That can keep, should keep, yeah. At least when I sleep, I have the Dandavat pranams, yeah. But also praying, chanting in front of Thakurji, it is so essential for improving our bhajan. Yeah. So Gurudev telling that I have accepted, yeah, this gift from my Gurudev. I embrace and pray to always be, yeah, sinking in the conceptions that are constantly coming from his heart. And Srila Bhakti Pragyan Keshava Maharaj, yeah, Acharya Keshari, yeah, not any ordinary, yeah, also in that same realm, yeah, Gurudev telling the 10th generation coming from Sri Satyanandana Gaura Hari, the jewel, Kirti Ratna. Yeah. So Gurudev telling the glories of his Guru Maharaj. And his Guru Maharaj, I read one article about Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada's glories, how Srila Param Gurudev glorifies Srila Bhakti Siddhanta. Same point, there is no even allowance, yeah, for being unhappy. Yeah.
We should always feel the happiness that these great personalities, they are with us, they are accessible, they are living in the reality, and they want us to be part of that. So this is bhajan, to cultivate eternal identity and loving relationship with Sri Guru Pada Padma. So all of us are very lucky. I am also very lucky, but also unfortunate, because I don't always have your association. Yeah, my mind wants so many things, but I pray for your mercy that more and more, yeah, we can have association. You do a special prayer. I always feel that here there is love and affection. There is so much family mood, and this is what is real Braj. Yeah, we are family. Krishna is our family member, Satchidananda Gaurari, especially Gurudev, yeah, and our Guru Parampara. So I conclude here. I again praying to all of you. Vancha kalpa tarubhyascha kripa sindhubheva Patitanam pavanepyo vaishnavepyo namo namaha. Srila Gurudev ki jai. Srila Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj ki jai. Avirbhav Mahamahotsav Srila Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj ki jai. Tirubhav Mahamahotsav Srila Bhaktivedanta Srila Narayan Goswami Maharaj Gurudev Bhakta Bandhav ki jai. Nitai Gaur Premanande. Maharaj speaking. Speaking little. You speaking now. I'm speaking Hindi then. I'm speaking Hindi. Prabhu, please, sitting in top. The other back is pain coming. तो एक गद्दा दे देना और पीछे वाला दे दो. Good. Now good. आज हमारे परमाराध्यतम श्री श्रील गुरुपाद पद्म ओं विष्णुपाद भक्तिवेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी की शुभ आविर्भाव तिथि। और हम कुछ उनके कृपा का स्मरण करके फिर बाद में हम आगे बढ़ेंगे और कुछ कीर्तन करेंगे। जब हमारे गुरु महाराज बचपन में ही माँ के गर्भ में थे तब भी चैतन्य मठ में आते, जब जन्म हुआ तभी चैतन्य मठ में, थोड़ा बड़ा हुआ तो पहले भी माँ ला करके पेड़ के नीचे सुला करके अपना सेवा करती थी, बर्तन मांजना, झाड़ू देना, सब सेवा में तत्पर रहती, जानती थी जड़ जगत की सेवा और गुरुवर्गों की सेवा में बहुत अंतर है। वो धन्य है उनके जीवन जिन्होंने अपने जीवन गुरु वैष्णव की सेवा में, आश्रम के मठ मंदिर की सेवा में अपने को समर्पण किया, क्योंकि कर्म और सेवा एक नहीं है। ये तत्व ज्ञान गुरुपाद बिंदु के आश्रय के बाद में अपने आप ही स्वाभाविक गुरु जी इसको अपनाते हैं और प्राकृतिक जगत में सेवा अधिकार दे देते हैं, तो कभी भी सेवा को प्राकृतिक नहीं समझते, ये तुच्छ नहीं समझते कि ये सेवा के द्वारा हम गुरु वैष्णव को, भगवान को प्रसन्न कर सकेंगे कि नहीं, ये संदेह कभी नहीं होता। तो वो अपने बालक को पेड़ के नीचे सुला दिया और वो अपना काम करती, ये नहीं सोचती कि चेटी खाएगी, मच्छर खाएगा कि क्या होगा। और लोग उनकी देखभाल कर रहे थे किंतु वो दिन भर सेवा करती। अब क्या हुआ, जब कुछ समय के बाद थोड़ा बड़ा हुआ तो एक दिन नवद्वीप धाम परिक्रमा आए तो मेरे गुरु महाराज कहीं छिप गए। माँ ढूंढती रही, छोटा सा है अभी कहाँ छिप गया, कहाँ गया, कोई उठा के ले गया,
हज़ार लाखों लोग आते हैं परिक्रमा में मायापुर में। कहाँ गया? तो हमारे गुरु महाराज चाचा जी भक्ति कुशल नरसिंह महाराज उस समय चैतन्य मठ में प्रभुपाद जी के चरणाश्रय करके उधर ही रहते थे। तो उन्हें समझा, भाभी आप चिंता मत करो, हम ढूंढ के निकाल लेंगे, मिल जाएगा तो हम रख लेंगे, बाद में आप आके ले जाना। किंतु अपना बेटा कौन छोड़ना चाहता है, छोटा सा बालक को। फिर भी वो प्रभुपाद जी के चरणों में आश्रय करने के कारण उनके अंदर में बहुत धैर्य था। किंतु जानती थी कि मैं जो घर जाऊँ तो मेरे पति मार पीट करके मेरा जान ले लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। बोले मैं भैया को चिट्ठी डाल दूंगा और भैया आ जाएगा, नहीं तो आके ले जाएगा, मिल गया तो जब परिक्रमा के बाद भी 10-15 दिन ठहरे कि तो मिले नहीं। जब चली गई तब गुरु महाराज फिर चैतन्य मठ मायापुर में आए प्रभुपाद जी के निकट में। तो उनसे पूछा, तुम कहाँ गया था? तुमको तुम्हारे माँ और आत्मीय स्वजन और मठ के ब्रह्मचारी सभी ढूंढ रहे थे, कहाँ चला गया? तो मैंने सोचा, बचपन में प्रहलाद महाराज भगवान की उपासना की थी, भगवान ने उनकी रक्षा की और भगवान ने पालन पोषण किया और भगवान दर्शन दिए और रक्षक सबके हैं। तो मैं निसिंगपल्ली जंगलों में वहाँ चला गया, निसिंगदेव के चरणों में वहीं प्रार्थना करता रहा कि मेरे को माया मोह से संसार से हटाओ और मैं नित्य प्रभुपाद गुरु की सेवा कर सकूं, वैष्णव की सेवा कर सकूं। तो तुमने खाया क्या, पिया क्या किया? बोले कभी कोई ना कोई कुछ दे देता, पुजारी भी दे देता। और वहाँ जंगलों में बोले कैसे रहा मच्छर, और वहाँ आज जैसे नहीं, वहाँ पूरा जंगल के अंदर में था, तो कैसे रहा, डर नहीं लगता अकेला? मैं मन में सोचा, गुरु वैष्णव के बिना और तो कोई दुनिया में है नहीं, भगवान है तो मैं इससे वहीं शरण लिया, नहीं तो मुझे वही संसार रूपी कारागार में ले जाकर जेल खाना में डाल देंगे। माँ बाप का मोह निगड़ बंधन छोड़ेंगे तो है नहीं, कहेंगे मेरा है बस, सब समय बंधन को और शक्त का बना करके धीरे धीरे कर जेल खाना से भले ही कभी छुटकारा मिल सकता है, किंतु ये माया मोह से, विशेष करके माँ का मोह, पिता का स्नेह, ये बंधन ये नहीं टूटता है, ये छोड़ना कठिन है। इससे मैं देखा जो करना है अभी बचपन में ही, आगे नहीं कुछ हो सकता। तो मैं तो चला गया। तो अब कैसे पता पड़ा? अब परिक्रमा समाप्त हो गया, सब चले गए। मैं देखा, मैं प्रभुपाद जी को स्मरण करता, वैष्णव को, गुरुवर्गों को। तो प्रभुपाद जी ने मेरे को सदा सर्वदा रक्षा की और बुला लिया, आ जाओ। तो मैं आ गया तो अभी तो छोटा सा है। तो नारद सेवा विग्रह प्रभु के पास ऐसे छोटे छोटे और भी बालक लोग थे, जैसे जनार्दन महाराज, संतो महाराज, ऋषिकेश महाराज, ऐसे बाद में ये लोग सब महाराज हुए। बहुत सारे एक उम्र के छोटे छोटे बहुत थे। तो प्रभुपाद जी ने भक्ति इंस्टीट्यूट में भर्ती कर दी। किंतु नारद सेवा विग्रह प्रभु मठ के समस्त दायित्व और जिम्मेदारियों को निभाते। हमारे परम गुरुदेव विनोद बिहारी मैनेजर थे, किंतु ये मठ के अंतर का जितनी सेवाएं हैं, सबका दायित्व नारद सेवा विग्रह के ऊपर था। उन्होंने बताया, मेरे गुरु महाराज का नाम, घर का नाम संतोष था। और संतोष, यदि मठ में रहना है तो गुरु वैष्णव के साथ संबंध जोड़ने के लिए, उनका प्रिय भाजन बनने के लिए कुछ सेवा करना सीखो। तो जैसे जैसे बोला, स्कूल जाते आते, सुबह शाम सेवा करते। रात को, इतवार को रात को उठा देते 12 बजे 1 बजे कि चलो मेरे साथ, क्योंकि उस समय ऐसे लैट्रिन नहीं था,
फूस का झोपड़ी बना करके उसके नीचे गमला रख देते और उसमें लेट्रिन होता, तो हफ्ता में 1 दिन करके बाहर फेंक के आते। अर्थात कहीं दूर जगह पर जंगल है तो कोई साफ सुथरा कर मांज करके रख देते। तो अभी छोटा सा है किंतु सर में ढो करके ले करके, और वो नारी सेवा विग्रह पुरुष साथ में और 2-4 बालक यदि जुट जाता, नहीं तो कोई और भक्त लोग सेवा करते। जब दिन में स्कूल से आते या सुबह कथा कीर्तन के बाद, हाँ, कहते थे देखो पेड़ में बेल पक गया है, जाओ उतर लाओ। छोटे थे, चढ़ जाते, उतारते। बोले प्रभुपाद जी को गुड़ देके बेल का शरबत बना के पके हुए बेल प्रभुपाद जी को दो। तो गुरु महाराज तैयार करके जब प्रभुपाद जी के पास ले गया तो प्रभुपाद जी बोले देखो मेरे को कुछ भी दोगे, सबसे पहले मेरे प्रिय गांधर्वा गिरिधारी है, महाप्रभु हैं, चारों आचार्य हैं, और विशेष करके हम जहाँ रहते हैं देखो गोवर्धन के तरटी में गिरिराज गोवर्धन है, राधा कुंड है, श्याम कुंड है। हाँ, तो जो कुछ दोगे ये समर्पण करके तब देना। मुझे खूब अच्छी तरह से याद है, एक समय मेरे गुरु महाराज गोवर्धन में विराजमान थे। मैं मथुरा से कैसे भी पहुँचा तो मैं एक फूल माला ले गया गुरु जी को देने के लिए। तो गुरु जी बोले कहाँ से माला लाया? तो मथुरा से। तो यहाँ जो मैं गिरिराज जी के तरटी में रहता हूँ, गिरिराज जी को समर्पण किया नहीं। तब उन्होंने सुनाया प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर जी के समय जब गुरु महाराज बचपन में थे, बहुत छोटा 9 साल उम्र के, तो बोले प्रभुपाद जी ने बतलाया ये गिरिराज गोवर्धन ब्रजपत्तन राधा कुंड के किनारे विराजमान है। हाँ, हमारा गुरुदेव गोरक्षोत्तर बाबा जी महाराज विराजमान हैं। तुम समर्पण करो तब मुझे कुछ देना। तो बोले मुझे तो मंत्र आता नहीं, मैं कुछ जानता नहीं। तब प्रभुपाद जी ने बोला देखो गिरिराज जी के मंत्र बहुत कठिन नहीं है, ये याद कर लो, ओम नमो गोवर्धन धरम, गोवर्धन धरम वंदे गोपाल गोपरूपिणम गोकुल उत्सव मिशानाम गोविंदम गोपिका प्रियम। ओ गोप गोपी गोपाल, हाँ, गोकुल के सबके हितकारी आनंद वर्धनकारी, सबको प्रसन्न करने वाले, उनको प्रणाम करके उनको समर्पण करके गुरु महाराज को समर्पण करके मुझे देना। तब उन्होंने बताया भागवत में गोवर्धन का जो लीला है, कथा है, हाँ, गोवर्धन के पास कुछ भी पहुँचता है तो वो भगवान के अत्यंत प्रिय है, वो भगवान को समर्पण किए बिना वो ग्रहण नहीं करेंगे और न किसी को देते हैं। वो जानते हैं जगत में स्वतंत्र जीव स्वतंत्रता से बहुत कुछ ग्रहण करके नरक निरयगामी होते हैं। इससे जो कुछ मिले सब गिरिराज जी को समर्पण कर दो और करके फिर वो प्रसादी ग्रहण करो। तो इस बात को गुरु महाराज कहते हैं, उसी दिन की बात प्रभुपाद जी ने कहा तो पत्थर के लकीर। वो हरे हरे चना खेत से उठा करके ला करके बीन के नींबू डाल के थोड़ा नमक डाल के प्रभुपाद जी को एक कटोरी देंगे। तो पहले गिरिराज जी को देखिए, गोरक्षोत्तर बाबा जी महाराज की समाधि है पास में ही, उनको देखिए, हाँ, गांधर्वा गिरिधारी को स्मरण करके महाप्रभु को, तब प्रभुपाद जी को देते। प्रभुपाद जी बहुत खुश प्रसन्न होते। वाह, सरलता नाम वैष्णवता है। जो सरल नहीं है, स्निग्ध नहीं है, सौम्य नहीं है, गुरु के आदेश निर्देश मानने को तैयार नहीं है, स्वतंत्र है, उनके जीवन में वो खुद प्रसन्न नहीं हो सकते, उनके सेवा द्वारा कोई प्रसन्न नहीं होगा। बहुत लोग बहुत सेवा करते हैं किंतु उनके द्वारा कोई प्रसन्न नहीं होता। कारण क्या? सरल नहीं है। कपटता होइले दूर प्रवेश प्रेमेर पूर। जब तक कपटता रहेगा तब तक
कुछ भी सेवा कोई ग्रहण नहीं करेंगे, स्वीकार करेंगे, करके भी प्रसन्न नहीं होंगे। इससे प्रभुपाद हैं जब उस दिन से बेल का शरबत ये चाना, कभी नरहरि सेवा विग्रह प्रभु बड़े व्यस्त, सारा दिन मठ के सेवा में, तो नीम पत्ता भून करके थोड़ा नमक देके एक कटोरी प्रभुपाद जेल के लिए भेज देते। और चना के दाल रात को भिगो दिया तो सुबह भून करके उसमें नमक थोड़ा काली मिर्ची देके एक कटोरी प्रभुपाद के लिए भेज देते। तो नरहरि प्रभु को इतना समय नहीं, सब समय चारों तरफ की जिम्मेदारी, ये प्रभुपाद जी के मनोभीष्ट पूरणकारी थे, तो वो हमारे गुरु महाराज को दे देते और ले जाते। प्रभुपाद समर्पण किया है, मंत्र याद है, प्रभुपाद याद है, बोलो। तब गुरु महाराज बोलने लगे, हैं मंत्र बोला, फिर बोले और कुछ याद है, बोले याद है, क्या? बोले हंताय मुद्रिया बोला हरिदास वर्ज्य जद रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानं तनोति सह गो गणयो स्तनयोर्जत पानीय सूजबस कंदर कंदमूलई। फिर कहने लगे गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो जो गोपिका विरुहितो हरिदास वर्ज्य कृष्ण सक्रमक भंग कृतार्चितो जो सप्ताहमस्य करतल पद्मे अप्यासित। प्रभुपाद बोले किसने याद कराया? बोले आपने जब गोवर्धन पूजा हुआ था, अन्नकूट हुआ था, तो आपने वहाँ पर पुष्पांजलि दी थी और सबको मंत्र पढ़ाया था, तो तुम ही वहाँ थे। तो गुरुदेव आपके कृपा से नरहरि प्रभु और विनोद बिहारी प्रभु मुझे सब याद करने के लिए बोला, जो प्रभुपाद जी कहते हैं सब याद करो। तो उन्होंने याद कर लिया। बोलते तुम इसका अर्थ जानते हो? हाँ। तब चुप हो गए। बोले बोलते क्यों नहीं? कुछ सुना अर्थ सिखाया तुमको? हाँ। तो गुरु महाराज बोले मैं उस समय अपने प्रभुपाद जी को स्मरण करके विनोद बिहारी को जी को और नरहरि प्रभु को बोले मैंने क्या बोला मुझे पता नहीं। प्रभुपाद जी अत्यंत प्रसन्न होकर क्या बोले, अब तुम एक अष्टक याद कर लेना, गोवर्धन प्रार्थना दशकम, और एक दूसरा क्या दूसरा है गोवर्धनों में दिशताम अभिष्टम। हाँ, ये दोनों याद कर लेना। तो गुरु महाराज हाँ कहते हैं प्रभुपाद जी का आदेश नहीं, ये ब्रह्म वाक्य शब्द ब्रह्म कह दिया बस। और प्रभुपाद जी ने कहा देखो इस जगत में कृष्ण ने क्या किया था, सबको बुला करके गिरिराज जी के चरणों में समर्पण करा दिया सबको। गिरिराज जी ने जिम्मेदारी ले ली। कृष्ण कहते हैं मैं सबकी जिम्मेदारी लेकर के पालन पोषण नहीं कर सकता, मेरा जो प्रिय सेवक है, प्रिय जन है वो इस काम को कर सकते हैं। और गिरिराज गोवर्धन सबको तैयार करके कैसे राधा रानी की सेवा करना है, कैसे कृष्ण सेवा करना है, कैसे ब्रजवासियों की सेवा करना है, सबको तैयार कर दी। तो कहते हैं यदि हाँ भजन करना है तो गिरिराज गोवर्धन से संबंध करो। गोवर्धयति गोवर्धनो, जो इंद्रियों को हम संभाल नहीं पाते, ये गो मतलब इंद्रिया, गो मतलब ज्ञान, गो मतलब पृथ्वी, गो मतलब समस्त वेद वेदांत उपनिषद, गोपाल गोप गोकुल कहते हैं। प्रभुपाद जी ने क्या कहा कि इंद्रियों को संभाल करके प्रभु की सेवा में योग्यता देने वाला और कोई किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं है। इससे कृष्ण ने सबको लाया गोवर्धन के चरणों में। कहते गुरु महाराज उस दिन से प्रतिदिन गिरिराज जी की स्तव स्तुति अष्टक वंदना कि मेरा इंद्रियां सफल हो, गुरु वैष्णव सेवा में लगे और किसी के लिए मैं कभी इसको व्यवहार न करूं। कहते गिरिराज जी में इतना सामर्थ्य है क्यों कृष्ण ने अपनी पूजा नहीं कराई, उन्होंने गिरिराज जी की पूजा कराया, गोवर्धन की पूजा कराया।
यहीं सब कुछ हुआ लीला जितना। हाँ, वहीं गोविंद कुंड में कृष्ण का अभिषेक हुआ, गोविंद कुंड में यज्ञ महोत्सव हुआ। हाँ, और अप्सरा कुंड में कृष्ण स्वयं नवल किशोर बन करके सबको अप्सरा के रूप में उनको स्वीकार किया। राधा कुंड में जितना उन्नत लीला। इससे गुरुदेव अब मेरे को याद आता है, जब भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज मठ में आए तब तो वो पूछते थे, आप तो प्रभुपाद जी के समय भी थे, तो प्रभुपाद जी से कोई बातचीत होता, कोई आपके ऊपर कृपा की? तब उन्होंने महाराज जी को बोला, हाँ, अपनी समझ तो कथा है, कहते हैं महाराज जी कहते हैं मेरा भी उस समय से गिरिराज जी के प्रति एक अटूट विश्वास और धारणा हो गया, हाँ, कि गिरिराज जी सब कुछ करने वाले हैं। कहते हैं तब से मेरे मन में आकांक्षाएं थी कि मैं गिरिराज जी में जाकर के वास करूँगा और उनकी सेवा करूँगा और उनकी परिक्रमा दूँगा, उनके सब तरह से मैं उनके चरणों में समर्पण करूँगा। तो महाराज जी काल क्रम से गिरिराज जी में जाकर के, ऐसे तो हफ्ते में 2 बार जाते परिक्रमा, किंतु लगातार 1 बार 6 महीना तक महाराज जी ने गिरिराज जी में वास करना, गिरिराज जी की परिक्रमा देना, माधुकरी 2 टुकड़ा किस तरह से ग्रहण करना, एक अध्याय भागवत का गिरिराज जी को सुनाना, हाँ, और वहीं 1 लाख हरिनाम नित्य प्रति जप करना। हाँ, कभी कभी सुबह पूरा परिक्रमा, शाम को भी परिक्रमा देते थे। हाँ, पूज्यपाद त्रिविक्रम महाराज वो 4 महीना, 1 दिन 2 दिन नहीं, हाँ, 4 महीना एक नारायण प्रभु थे गृहस्थ भक्त बेगमपुर के, सनातन प्रभु के पुत्र मुनि महाराज के। हाँ, तो प्रभुपाद जी के हरिनाम आश्रित थे, दीक्षा बाद में श्रोती महाराज से लिया, किंतु ये दोनों मिल करके भारी शरीर फिर भी परिक्रमा दे रहे, पैर छिल गया, कट गया, खून बह रहा है, फिर भी बंधन नहीं किया। कहते यदि इस जीवन में जो भगवान ने सिखाया, गुरुवर्गों ने कहा, हम तो नहीं मान सकते, तो साधन नहीं करे तो सिद्धि की बात कहाँ से आएगी? हाँ, साधन में भावी चाह सिद्ध देव पावेता। हाँ, ब्रजे गोपी देहधरी मंजरी आश्रय करी सेवा साधन परी, हाँ, सिद्ध स्वरूपेर परिचय। तो इतना आसान नहीं है। तो महाराज जी ने जैसे साधन की, तो हमारे गुरु महाराज जी भी हैं, जब तक ब्रजपत्तन में चैतन्य मठ में थे, तो प्रभुपाद जी की कृपा आदेश से कहते हैं यदि संबंध और भगवत कृपा प्राप्त करना है, संबंध जोड़ना है, वैष्णव के कृपा पात्र बनना है, तो सेवा के द्वारा ही संभव हो सकता है। निष्कपट सेवा, हाँ, कपटता होइले दूर प्रवेश प्रेमेर पूर। कपट करके नहीं, दिखावा नहीं, हाँ, कोई खुश होकर के इनाम देंगे, प्रसन्नता पूर्वक हमारा गुणगान करेंगे, दूसरे के पास हमारा बखान करेंगे, ये आशा अभिलाषा की जरूरत नहीं। हाँ, जब प्रभुपाद जी हरिकथा कीर्तन करते तो हमारे गुरु महाराज उस समय रात को जब विनोद बिहारी के साथ रहते, तब विनोद बिहारी ब्रह्मचारी उनको ये सब कथाओं का बड़े सुंदर रूप से सुना देते। जैसे कि स्वरूप दामोदर जी प्रतिदिन के सब कथाओं को रघुनाथ दास गोस्वामी को सुनाता और नोट करके रखते थे। तो हमारे गुरु महाराज का डायरी था, बचपन से ही वो आज क्या क्या सुना सब कुछ अपना लिखते थे। सारा दिन के काम समाप्त करके रात को यदि 12-1 भी बज जाए, 2 बज जाए, अपना प्रतिदिन की डायरी लिखना। हाँ, तो उसमें हाँ, देखा कि किस तरह से हाँ, संबंध उदित होता है वैष्णव से। सब दिन हाँ, प्रभुपाद जी ने कहा
देखो वैष्णव शरीर और प्राकृतिक सदा जे निंदे हिंसा करी भगति विनोद नासंभाषे तारे सदा रहे मौन धरी। कोई भी भक्त आया आश्रम में, गृहस्थ हो चाहे त्यागी हो, गुरु पदाश्रय किया, हरिनाम आश्रय किया, सेवा का आश्रय किया, तो उनके प्रति प्राकृतिक बुद्धि नहीं करना। हाँ, सबको सम्मान देना ये धर्म है, वैष्णवता है। तब भक्तों की कृपा से क्या होगा, समस्त सद्गुणों के भंडार सब आ जाएगा। ये यदि साधन करके प्राप्त करना हो तो ना जाने करोड़ों जन्म लग जाए। हाँ, ये संभव नहीं है साधन करके प्राप्त करना। यही साधन है निष्कपट रूप से भक्तों की आदेश निर्देश को पालन करने की चेष्टा करना। तो गुरु महाराज बचपन से ही देखा कोई वैष्णव का कोई यदि किसी चीज़ की ज़रूरत हो, वो तत्क्षणात सब कुछ एक तरफ करके उस सेवा में संलग्न हो जाते। किसी एक समय भक्ति सारंग गोसाई महाराज जन्माष्टमी के कुछ दिन पहले प्रभुपाद जी ने बुलाया और कहा जाओ जन्माष्टमी आ गया, अब कुछ कलेक्शन करना है, कुछ भिक्षा करना है, संग्रह करना है। जब कह दिया बरसात है, गर्मी है, सर्दी है, सारा दिन बाहर जा कर के मार्केट में सब जगह में वो भिक्षा संग्रह करने लगे। किंतु क्या हुआ, अधिक परिश्रम, खाना पीना नहीं, और उसके शरीर अस्वस्थ हो गया, बुखार हो गया, बरसात में भीगते भीगते निमोनिया हो गया, टाइफाइड हो गया। मायापुर आए लौट के एकदम कांपते कांपते मूर्छित हो गया और गिर पड़ा। प्रभुपाद जी को खबर मिल गया। प्रभुपाद जी स्वयं आकर के देखा, इतना बुखार है ऐसा शरीर जल जाएगा। और मायापुर में उसमें कोई डॉक्टर वैद्य कोई नहीं, और न आसपास में कृष्णनगर में है तो इतना दूर पैदल कोई घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी। प्रभुपाद जी ने तुरंत कोलकाता में ट्रंकल बुक करके भक्ति विलास तीर्थ महाराज जी, उस समय कुंज बिहारी प्रभु, उनको भेज करके डॉक्टर से सलाह परामर्श करके तुरंत दवाई तो लाया, किंतु सर में प्रभुपाद सारा दिन रात बैठकर जलपट्टी देने लग गए, पानी जल का धारा। तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं साक्षात गुरु भगवत स्वरूप आज आश्रित जन के लिए कैसी सेवा कर रहे हैं। तो मेरा गुरु महाराज वहाँ पहुँचे तो देखा क्या, प्रभुपाद जी सर में जलधारा दे रहे हैं और हाथ फेर रहे हैं, इतना गर्म शरीर। तो हमारे गुरु महाराज उस समय बालक पंखा झाल रहे थे प्रभुपाद जी को, बोले तुम्हें पंखा झालने की ज़रूरत नहीं, बैठ जाओ, थोड़ा सा इनको हाथ पैर को सहला दो, अर्थात दाब दो, तौलिया को गिला करके पोंछ दो। तो गुरु महाराज उनको पूछने लगे। इतने में कई घंटों के बाद कोलकाता से जब कुंज बिहारी प्रभु दवाई लेके आया, डॉक्टर को भी साथ ले आया। डॉक्टर देख के बोले ये तो निमोनिया टाइफाइड हो गया, इनका सांस रुक रहा है, और पानी का धारण नहीं देने का हम व्यवस्था बना रहे हैं। तो एक दिन, दो दिन, तीन दिन गया, चौथे दिन इनको होश आया। तब तक प्रभुपाद जी टस से मस नहीं हुए, न मेरे गुरु महाराज और वैष्णव जन। तो कोई यदि कहे कि ये कर्मफल है, सदगुरु आश्रय करके भी ऐसे कष्ट पा रहा है, या प्रभु की सेवा के लिए जा कर के भी ऐसे भोगना पड़ रहा है, किंतु जब चौथे दिन जब उनका होश आया तो क्या दिखा, प्रभुपाद जी सिराने में हैं, और इतना गंभीर, इतना दार्शनिक तत्वज्ञ रोने लग गया। ओहो
मैंने आपको कितना तकलीफ दिया। गुरुदेव, हमारे माँ बाप भी शायद इतना करने वाले नहीं हैं। हाँ, तब प्रभुपाद जी बोले आप जल्दी स्वस्थ हो जाइए। मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ, ये सेवा के लिए भगवान ने सुयोग दिया है, किंतु कुछ प्रारब्ध अप्रारब्ध ये नहीं भक्तों को दुख दे सकता है, कष्ट दे सकता है। तो ये क्या है? कर्मफल है? नहीं। तो ये क्या है? भगवान अपनाने के लिए, अपने नज़दीक में लाने के लिए हैं, कुछ भगवान सब वस्तु को हटाते हैं और निर्मल करके अपनाते हैं। ते शरीर के अंदर में कर्म के द्वारा ये शरीर मिलता है, किंतु इस शरीर के अंदर में भगवत सेवा के विरोधी तत्व भी विराजमान है। हमें भगवत सेवा करने के लिए हम इसको नियुक्त करते हैं, चेष्टा करते हैं, किंतु ये हमसे कुछ विरोध कर बैठता है। कैसे विरोध करता है? कहते हैं ये हमारा सेवा करने के लिए, सेवा करने के देने के लिए ये कौन करता है? आदिदैविक, आदिभौतिक, आध्यात्मिक ताप कौन देता है? ये देवता लोग। दैविक देवता लोग क्या करते हैं? ये बहुत यातना देते हैं। आदिभौतिक और आध्यात्मिक ये दो चीज़ तो ज़्यादा तकलीफ नहीं देता, किंतु ये देवता लोग बहुत तंग करते हैं। ऐसे साधक को ये ध्यान रखना है, हरिव सदाराध्य सर्वदेवेश्वरेश्वर इतरे ब्रह्मरुद्राद्या नावज्ञ कदाचन। कभी किसी देवी देवता का अवज्ञा अनादर नहीं करना चाहिए, किंतु सभी भगवान के ही दासानुदास है, दास दासियाँ हैं, तो सबका हक है। सबको भगवत प्रसाद देना चाहिए, निर्माल्य देना चाहिए, चरणामृत देना चाहिए, हैं, किंतु स्वतंत्र पूजा नहीं करना चाहिए, स्वतंत्र किसी की आराधना नहीं करना चाहिए। सब भगवान के दासानुदास होने के कारण नाते उनको भगवत प्रसाद उच्छिष्ट जो कुछ होता है उनको देके फिर ग्रहण करना चाहिए। नहीं तो भगवान को भोग लगाया, गुरु को भोग लगाया, जो कुछ किया सब हम ही ग्रहण करने, हम ही सब मालिक है और कोई नहीं है, ऐसा नहीं। सब इंतज़ार करते हैं, सबके इतना भाग्य नहीं है, सब आराधना उपासना नहीं कर सकता, किंतु प्रसाद के अधिकार सबका है, निर्माल्य का अधिकार है, चरणामृत का अधिकार है। इससे हमारे यहाँ जो अर्चन मार्ग है, अर्चन करते हैं तो बाद में सब देवी देवताओं को नहीं, वैष्णवों को, वैष्णवियों को, सब ब्रजवासियों को, भक्तों को, आधिकारिक देवताओं को, सबको समर्पण कर देते हैं। दक्षिण भारत जाने से तो देखेंगे भोग के बाद में प्रसाद के थाली लेकर के बाहर आते हैं, वो सब देवी देवताओं के स्थान बने हुए हैं, उनको सबको समर्पण करते हैं। तो कहते हैं उस दिन से प्रभुपाद जी ने कहा अब कोई आपको तंग नहीं करेगा। यदि कोई गुरु के निकट पहुँचता है, गुरु के अत्यंत प्रिय, भगवान के प्रिय होता है, तो उनको बस ज़्यादा झंझट उनके ऊपर आता है, वजन उनके ऊपर आता है। साधारण व्यक्ति के ऊपर इतना चिंता नहीं है, किंतु उनको आक्रमण करते हैं। इसलिए सावधान। तो मेरा गुरु महाराज कहते हैं उस दिन से हमने प्रभुपाद जी का जो वैशिष्ट देखा कि वहाँ पर केवल देवी देवता नहीं, कोई भी साधारण व्यक्ति आया उनके प्रति आदर बुद्धि हैं। सबको देखो, आश्रम में ये नहीं कि सब योग्य सुयोग्य व्यक्ति आएंगे, और मछली खाने वाला, मांस खाने वाला, दारू पीने वाला, नशा करने वाला सभी आता है, किंतु सबको यदि प्रसाद नहीं मिला
तो उनका सुधार तो कभी होगा नहीं। उनके जीवन में उन्होंने कभी महाप्रसाद पाया नहीं, भगवत नाम गुणगान सुना नहीं, तो उनको उधर कैसे होगा? हैं? वैष्णवजन कितना दयालु हैं। कोई कहता है अरे ये भूत प्रेत की सेवा कर क्या होगा, हैं? आता है ये सब, किंतु ये मूर्खता है। हैं? जीव कोई ईश्वर अंश जीव विनाशी मामव्यांश जीवलोक जीवभूत सनातन, भगवान के समस्त प्राणी मात्र प्रभु के हैं, किंतु तो अज्ञानी हैं, कुकुर्मी हैं, और कितने व्यभिचार में रत हो गया, गलत कार्यों में रत हो गया, इतना तो उनके अंदर ज्ञान नहीं। तो ज्ञानी व्यक्ति, योग्य व्यक्ति, वो क्यों घृणा करे, वो क्यों उपेक्षा करे, उसे सुधारने के लिए कोशिश तो करे। किसी को घृणा करना, उपेक्षा करना, ये निर्दयता है, ये दया का परिचय नहीं है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल है अभिमान। दया धर्म न छोड़िए जब तक है घट में प्राण। यदि किसी को दया नहीं कर सकते हैं, उनको कृपा नहीं कर सकते हैं, क्षमा नहीं कर सकते हैं, तो आपको आपके ऊपर भगवत कृपा क्यों होगा? कभी नहीं होगा। तो मेरे गुरु महाराज कहते हैं उस दिन से देखा नवद्वीप मायापुर परिक्रमा में हजार नहीं लाखों लोग आते थे, प्रभुपाद नरगल हरिकथा सुनाते थे और भक्तों को आदेश देते थे, महाराजों को, देखो ये भगवत प्रसाद सबको मिलना चाहिए। इसके द्वारा इस जीवन में एक प्रसाद के किन का भी यदि किसी के अंदर पहुंच गया, बस वही बीज बो दिया, कार्य शुरू हो गया, वो अब बहुत जल्दी कार्यकारी होगा। जैसे प्रसादात भगवत प्रसादो जैसे प्रसादान नगोति कुतोपि दयांग स्तुभंग दशस्ति संध्यम। जिसने प्रसाद पाया ना, वो 3 संध्या अब गायत्री भी जपेगा, माला भी करेगा, मंत्र भी करेगा, सम्मान भी करेगा, सबको यथायोग्य आदर देना सीखेगा। क्योंकि अब तक तो महाप्रसाद नहीं पाया, तामसी भोजन करा, राजसी करा, ऐसे गुण आया, सात्विक पाया तो ऐसे गुण आया, किंतु निर्बंध कृष्ण संबंधी युक्तम वैराग्यम उच्यते। कभी यथायोग्य भोग तथा नहीं रोग, अनासक्ति से विषयान यथारम उपजुंजतो। निर्बंध कृष्ण संबंधी युक्तम वैराग्यम उच्यते। अनुराग कहाँ से आएगा? खाएगा भूसा और उल्टा पुल्टा तामसी भोजन करेगा तो बुद्धि कैसे होगा? हाँ, कृष्ण तो बोलते हैं तेषाम सतयुक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धियुगम तांगजनम अभियांति थे। तो मेरे गुरु महाराज कहते प्रभुपाद जी इतना सरल सहज रूप में समझा दिया। सारे भक्त लोग क्या किया? तत्पर हो गया सेवा में। क्या सेवा में? साधन लोग आया तो ये क्या गुरु है, वैष्णव है, भगवान है क्या, इनकी सेवा करे? कहते नहीं, ये गुरु प्रसन्न होंगे, भगवान प्रसन्न होंगे, ये जीव सुधर जाएगा। तो हाँ, जीवों को सुधारने के लिए हैं कितना कृपा करना पड़ता है, कितना दया कर। प्रभुपाद जी कहते 100 गैलन खून मैं एक व्यक्ति के लिए खर्च करने के लिए तैयार हूँ, उसको यदि सुधारना है तो मेरे गुरु महाराज उस दिन से कहा कोई भी व्यक्ति आया तो उनको पहले आसन दो बैठने के लिए, उनको थोड़ा पानी जल पान कराओ, हाँ, और उनको यदि कुछ भी नहीं है तो कौन सी मीठा तो बोल सकते हैं, हाँ? उनको भोजन आच्छादन, हाँ, आसन और निर्मल्य, कुछ भी नहीं है तो मीठा तो बोल सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं। किंतु ये भी हमारे लिए संभव नहीं होता। हम तो सोचते हैं हमसे बड़ा कौन है, हम क्यों करें एक दूसरे की सेवा, हाँ? भूमिफोड़ माली निजे वाले नारायण कार्य करी निवेदन, मैं खुद बन गया ब्रह्म, भगवान बन गया, हाँ? मैं गुरु हूँ, आचार्य हूँ, सन्यासी हूँ, ऐसा नहीं। प्रभुपाद जी देखते थे कौन सन्यासी कहाँ है, कौन कहाँ छिप रहा है,
कौन यात्रियों को, भक्तों को, साधारण व्यक्तियों को देख रहा है। सबको हरिकथा सुनाया, तृप्त संतुष्ट करके परिष्कृत करके प्रभुपाद जी के पास लाया। हैं, हम लोग जब मथुरा में थे महाराज जी क्या कहते थे, देखो इतने जो लोग आए ना, इनकी सेवा व्यक्तिगत नहीं है, ये भगवत सेवा, गुरु सेवा है। तुम ये मत समझ लेना कि इनको खिलाया पिलाया, इनके लिए रसोई बनाया, इनको जगह बर्तन में साफ किया, ये इससे भगवान की सेवा हुई। ये तो साधारण व्यक्ति की काम करा, इससे क्या होगा? नहीं, ये गुरु सेवा है। हाँ, भगवान की सेवा प्रसन्नता है। तुम अच्छा सीखा, अच्छा सिखाओ, अच्छा खाते हो, अच्छा खिलाओ, अच्छा पहनते हो, अच्छा पहनाओ, तभी तो अच्छा बनेगा। हाँ, बाप यदि रोज दिन बेटे को मारता है पीटता है, तो बेटा भी बड़े हो गया, कितना मैं मार खाया, तो अब दिखाता हूँ तुमको भी। वो भी धक्का लगाएगा, घुटनों तोड़ेगा, सर फोड़ेगा। क्यों सीखा है? तो बाप ने। माँ कहते हैं गधा गधा गधा, तो एक दिन बच्चा बोलता है तुम तो गधे का माँ हो ना। हाँ, तो तुम गधी बनेगी नहीं, तो बिगड़ा किसने? हाँ, इसलिए गुरु शिष्य नहीं बनाते, गुरु गुरु बनाते हैं। मास्टर छात्र नहीं बनाते, मास्टर बनाते हैं। तो आपके अंदर धैर्य नहीं है, तो आप आगे क्या बढ़ाएंगे और किसको क्या सिखाएंगे? तो मेरा गुरु महाराज बचपन से प्रभुपाद जी और प्रभुपाद जी के जो निर्जन अंतरंग पार्षद, उनके साथ रह करके वो कैसे थे, यदि किसी ने दर्शन किया तो उनको पता है कैसे गौ और मिट्टी के पुतले, कभी जवाब देने वाला नहीं है। हैं, सबके कैसे सम्मान करना चाहिए। अपने गुरु भाई अभी नए नए आए, उनको भी कितना आदर सम्मान, और कैसे गुरु सेवा करेंगे सीखेंगे, कैसे भगवत सेवा सीखेंगे, उनको यत्न करके सिखाते। एक दिन महाराज जी मुझे मथुरा में कहते हैं, ये लोग गलती करते हैं, ये तुम्हारा दोष है। मेरे क्या दोष है? मैंने क्या सीखा? क्या गलत करो? बोले तुमने सिखाया क्यों नहीं, अच्छा करो, ये तुम्हारा दोष है। तुम अपने घर में घुस जाओगे और दरवाजा बंद कर बैठ जाओगे, इन लोगों को कौन सिखाएगा? ये तो अभी कुछ जानता नहीं है, गलत तो करेगा ही। तो तुम्हारा कर्तव्य है उन लोगों को सिखाना। हाँ, उन लोगों को स्नेह करके पालन पोषण करना। यदि तुम नहीं करते हो तो तुम हमारा विरोधी है, तुम मुझे नहीं मानते हो। और यदि मुझे मानते हो तो सबके प्रति तुम्हारा कर्तव्य बनता है। सबको सिखाओ, सबको बोलो, सबको बुलाओ, सबके स्नेह करो, यही मेरे प्रति सेवा है, श्रद्धा है। तो कहते हैं प्रभुपाद जी, हाँ, और उनके परिकरजन ऐसे हैं, इसको कहते हैं स्नेह प्रीति का वितरण करना। हाँ, आपने गुरु से जो कुछ प्राप्त किया, तो आप यदि किसी को दे नहीं सकते हैं, तो क्या गुरु सेवा होगी? इससे गुरु सेवा, भगवत सेवा, हमने गीता पढ़ा, भागवत पढ़ा, खूब ज्ञान अर्जन किया, खूब हम जानते हैं अच्छा चीज़। हाँ, हम किसी को सिखाएंगे नहीं, सुनाएंगे नहीं, तो हमारे जैसे निष्ठुर निर्दयी कौन होगा, क्रूर कौन होगा? इससे गुरु महाराज या प्रभुपाद जी से दिक्कत, प्रभुपाद जी को दिखा, सुबह बैठ गए तो एक व्यक्ति भी आया, उसको हरिकथा सुना 4-4 घंटा, 5-5 घंटा, 6-6 घंटा, कभी बंदा नहीं। मेरे गुरु महाराज भी ऐसे थे। हम लोग आते थे स्कूल से, कॉलेज से, कभी 8-10 बच्चे आए, कभी 20। गुरु महाराज यही शाम के समय जब हम आते, बस क्या होता था, 8 बजे घंटी बजता प्रसाद की, कथा कीर्तन के बाद, आरती के बाद। अब जब तक गुरु महाराज पाएंगे नहीं, कोई नहीं पा सकता। और हम करके बैठ गए तो गुरु महाराज हरिकथा सुना रहे, आप ब्रह्मचारी लोग इधर उधर, महाराज लोग घूम रहे हैं, कुछ बोल तो सकते नहीं। हम लोग इशारा कर जाओ हैं, गुरु महाराज छोड़े नहीं। और बाद में सेवकों को बोलते हैं इन लोगों को प्रसाद दो, तो कुछ फल फूल इधर उधर ले आया। ऐसे चिनोड़ी दाना खिलाने से चिनोड़ी मिलेगा तुमको, बढ़िया ला, रसगुल्ला ला, छेना ला, संदेश ला, हैं, और नहीं तो अच्छी अच्छी चीज़ लाओ।
हम अच्छा खाएंगे अच्छा पहनेंगे और कोई आएगा तो सूखे रोटी अरे तो चिनोड़ी दाना बतासा ये उल्टा पुल्टा दे देंगे। तो अच्छा उनको प्रसाद का कोई हक नहीं है। वो रसगुल्ला मालपुआ तो मेरे लिए ही है, हैं कचौड़ी और अच्छे अच्छे चीज़ मेरे लिए हैं और किसी के लिए टुकड़ा भी नहीं है। तो गुरु महाराज ऐसे डांट लगाते तो वो क्या करे, अब बाजार से खरीद करके सामने दुकान है मंदिर के सामने ला करके इन लोगों को देता, देते समय चुपचाप बोलते जल्दी जाओ गुरु महाराज प्रसाद पाएंगे। किंतु गुरु महाराज कथा बंद नहीं करेंगे, जाने नहीं देंगे। 9 बज जाता, फिर जब हम गेट में जाते बोलते थे आगे से गेट खोलेंगे नहीं, कभी आने नहीं दूंगा जो देर करोगे तो हम कैसे देर करेंगे। कथा गुरु महाराज बंद ही नहीं करते, इतना सुंदर सुंदर कथा सुनाते हैं। तो गुरु महाराज बोलते हैं कि देखो प्रभुपाद जी के समय हैं सब संतों को प्रभुपाद जी ने आदेश दे दिया, तुम्हारा ये धर्म है दिन में कम से कम हैं 12 घंटा यदि होता है 13 घंटा तुम लोग हरिकथा का कीर्तन करोगे, 14 घंटा। हाँ भक्तिप्रद पुरी महाराज उस समय प्रणबानंद ब्रह्मचारी तो कहते प्रभुपाद कैसे करे, बोले हरिनाम करते हो, तो कब करूँगा, बोले मंत्र जब करते हो, बोले कब करूँगा। प्रेस के काम करते करते दिन जाता है, आरती 3 बार, कथा कीर्तन, तो बोले कितना सोते हो, बोले 4 घंटा। बोले अब से 2 घंटा और कम करो, वो 2 घंटा हरिनाम करो। देखो तो कहते हैं वो भक्तिप्रद पुरी महाराज वो दिन है, आज भी दिन है, प्रभुपाद जी की कृपा कह दिया बहुत है। किंतु हरिकथा कीर्तन कर रहे हैं तो सब सो गए या सब चला गया, हाँ 1-2 बैठे हुए हैं, वो 1-2 कोई कथा सुना रहे हैं। बोले मैं किसी को नहीं सुनाता, मैं तो अपने गुरु के पास सुनाता हूँ, भगवान को सुनाता हूँ। तो मेरे गुरु महाराज बचपन से कैसे पाले पोसे तो अपने जीवन में भी आचरण करके दिखाया अंतिम दिन तक। लास्ट में महाराज जी ने मुझे को भेजा जा तेरे गुरु महाराज से मिले। तो जब गया 25-30 ब्रह्मचारी को लेके, तो गुरु महाराज उस समय निमाई तीर्थ में गंगा किनारे भजन कुटी वहाँ विराजमान थे। तो जब गया तो क्या बोले, हे मैं क्यों ले चलो, तो कहाँ, बोले गोवर्धन। मतलब वहाँ तो कोई उस समय हमारा मंदिर नहीं बना, 2005 में बना, 2004 की बात है। तो मैं बोला कहाँ रहेंगे, बोले किसी ब्रजवासी को बरामदा में रह जाऊँगा। तो क्या खाएंगे, बोले माधुरी कर ले आना रोटी। बोले इतनी मोटी रोटी को आपका दांत नहीं है, खा नहीं सकते, इतना सख्त। बोले माठा में भिगो देना, नरम हो जाएगा ना, और हाथ से मल करके नमक दे खा लेंगे। हम गिरिराज जी में ही अंतिम समय वहाँ ही रहेंगे। मैं बोला ये लोग छोड़ेंगे नहीं, आप आचार्य है, गुरु हैं, इतना लाखों शिष्य है, क्यों छोड़ेगा कोई। बोले मेरा कोई नहीं है, और सामने सबरे हैं। वो बोले हम कोई नहीं है, अरे तुम बड़े बड़े पंडित हो, विद्वान हो, ज्ञानी गुणी हो, तो मैं तो गोवर्धन में ही जाऊँगा। किंतु ये छोड़े नहीं, क्यों, वो छोड़ेंगे नहीं। फिर भी गुरु महाराज गोवर्धन आकर के, आजकल तो वहाँ मंदिर बन गया, बहुत सुंदर भजन कोठी सुंदर बनाया, एक साधारण उनके सेवक नहीं सब कुछ कर दिया। गुरु महाराज आकर के महीनों रहे हैं, और गिरिराज जी एकदम तरटी के सामने ही। अपने महाराज जी भी पहले वहीं ब्रजमंडल परिक्रमा में आकर जाके वहीं रहते थे, और वहाँ से ही अन्नकूट उत्सवादी सब कुछ करते थे। तो हमें जीवन में देखा गुरुगत प्राण कैसे गोवर्धन के प्रति उनका निष्ठा, राधा कुंड श्याम कुंड। इसलिए उनके जब वंदना आता है ना, तो कहते हैं सेवा कुंजे ब्रजरम में गोवर्धने गिरो सदा, राधा कुंडे रसानंदे तत्व सेवा प्रदायकम। कहाँ है सेवा कुंज में। यदि गुरु जी कहते मेरे को देखना है ना, तो तुम सेवा कुंज में आ जाना, तो मैं तुम लोगों से मिल जाऊंगा। सेवा कुंजे रसानंदे ना, सेवा कुंजे ब्रजरम में, ब्रज में सर्वत्र विराजमान है, किंतु सेवा कुंज उनका स्थान है। क्यों, रूप सनातन गौड़ीय मठ सबसे पहले वहीं गुरु जी का प्रकाशित किया, वृंदा देवी की कृपा अहेतु की। फिर क्या बोला, सेवा कुंज ब्रजरम में गोवर्धन गिरो सदा, गोवर्धन के तरटी में
मैं मिलूँगा। और नहीं तो राधा कुंडे रसानंदे तत्व सेवा प्रदायकम, तो यदि राधा कुंड में जाओगे ना, जो तुम्हारा सेवा वृत्ति है, तो वहाँ पर देखो मैं सदा सेवा वहीं करता हूँ। राधा रानी के पाल्यदासी, हाँ, किंकरी। एक ही बात मेरे गुरु महाराज जी की भी था, ऐसे त्रिविक्रम महाराज जी, इससे तीनों एक आत्मा है, अलग नहीं है और हो नहीं सकते, क्योंकि एक ही विनोद मंजरी के किंकरियाँ हैं। नयन मंजरी के विनोद मंजरी है, तो विनोद मंजरी के ये तीनों किंकरियाँ कैसे किंकरी हैं, उसका परिचय यदि साधन भजन करेंगे और उनका आदर्श और विचारों को लेकर चलेंगे तो अति शीघ्र ही उन्होंने परिचय दे दिया अपना। हाँ, किधर मेरे को रहना है और किधर मैं मिलूँगा, ये मेरा अपना कपोल कल्पना नहीं है। या कोई कह सकता है कि इन्होंने अपना रचना करके बना दिया इतना सारा श्लोक और ये हो, ये उन लोगों की कल्पना मात्र है, हमारा कल्पना नहीं है। मैं कुछ जानता भी नहीं हूँ, मेरे से मूर्ख गधा तो विश्व में और दूसरा कोई होगा भी नहीं है। किंतु है इतना है कि महाराज जी कृपा करके चरणों में स्थान दे करके रखा और अभी भी पालन पोषण कर रहे। क्यों? कल हम लोगों ने सुना, यदि आत्मा नित्य है, कृष्ण कहते हैं चेतन चेतनाम नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनाम एकोपि जो बहुधा विधाति कामन। हाँ, तो यदि आत्मा नित्य है तो गुरु तो ऐसे भी नित्य है, ऐसे भी नित्य है, किंतु उनका स्थान कहाँ, इससे बतलाया कि वृंदावन ब्रजधाम में नित्य काल विराजमान है, नित्य सेवा में है। नवद्वीप में भले ही जन्म हो सकता है, किंतु क्षेत्रमंडल में हैं वहाँ पर साधन कर सकते हैं, किंतु ब्रज नित्य विहार स्थान विलास स्थान और ब्रज में ही नित्य सेवा में रत है। इससे आज तो रात हो गया, हम लोग तो अभी सब कथा का अनुसरण कर ही रहे हैं, फिर हम लोग काल सुनेंगे आगे की कथा है। किंतु इतना ही ध्यान रखना है कि रघुनाथ दास गोस्वामी को महाप्रभु जी ने गुंजामाला और गिरधारी शिला दे दी, गिरिराज शिला। महाप्रभु स्वयं सेवा करते थे। तो हमारे संप्रदाय का ये ऐतिह्य और वैशिष्ट्य है, जब तक गिरिराज जी के साथ संबंध नहीं है तब तक आप ब्रज में प्रवेश नहीं किया है और न कर सकते, कोई किसी कीमत पर नहीं। कृष्ण सारे ब्रजवासी को ले आया गिरिराज जी के चरणों में, और कहाँ ले आया? दान घाटी में। किससे लाया है? अपने को दान दे दो, समर्पण कर दो। इसके बाद गिरिराज जी क्या करते देखो, हाँ, गिरिराज जी दान निवर्तन कुंड में स्वरूप सिद्धि दे करके सजा करके तैयार करके आपको सदा के लिए अधिकार देंगे। हमने दे दिया कूड़ा कबाड़ा ये चमड़ी और दमड़ी को, हैं, किंतु वो क्या देंगे? नित्य स्वरूप सिद्धि दे करके नित्य सेवा का अधिकार देंगे। इससे दास गोस्वामी कहते हैं निज निकट निवासम देहि गोवर्धनोत्तम। तो महाराज जी ने हम लोग को कूट कूट करके बचपन से जब मठ में आया एक ही चीज़ सिखाया। परम गुरु जी ने मथुरा मठ को स्थापना की कब? ये अन्नकूट के दिन, गोवर्धन पूजा के दिन, हैं। तो हम महाराज जी से कहते थे, महाराज जी हैं अब यहाँ तो हर साल उत्सव मनाते गिरिराज जी की। जब आश्रम लिया तभी गिरिराज जी विराजमान थे, आज भी विराजमान है। पास में तो गिरिराज जी है, जाएंगे नहीं वहाँ तो चलो, कि तो कहाँ रहोगे, क्या करोगे? हमने तो इतना गिरिराज जी परिक्रमा दी, इतना सेवा की, पूजा की, गिरिराज जी ने स्थान नहीं दी, कुछ नहीं की। मैंने बोला क्यों नहीं देंगे, आप कहो तो सही तभी तो महाराज जी ने बोला देखो यदि गिरिराज जी की इच्छा होए कोई जगह टगा दे दे, मैं कोई क्या ज़रूरत। पहले हम मैनाली धर्मशाला में ठहरते, फिर हम ठहरते थे लक्ष्मीनारायण धर्मशाला में, फिर ठहरते थे मोदी भवन में, जगह जगह। किंतु अन्नकूट जरूर गिरिराज जी में होना है। बाद में तो गिरिराज जी ने ऐसा स्थान दे दिया, नित्य काल नित्य सेवा का और नित्य अधिकार दे दिया। नहीं तो पता नहीं पड़ता महाराज जी मनोभिष्ट कहाँ है, महाराज जी कहाँ रहते हैं। उस समय महाराज जी ने सब एक करके वर्णन किया। इससे
अंगुली पकड़ो तो हाथ आ जाता है, हाथ को पकड़ो तो स्वर धड़ आ जाता है, धड़ को पकड़ो तो स्वर आ जाता है। इससे यदि महाराज जी को याद करो तो त्रिविक्रम महाराज आ जाते हैं, त्रिविक्रम जी याद करो तो गुरु जी आ जाते हैं, गुरु जी याद करो तो हाँ विनोद बिहारी ब्रह्मचारी आ गया, विनोद बिहारी वो आ गए तो प्रभुपाद आ गए, और सारा की सारा एक खींच के एक ही लाइन में आ जाता है, सब गुरु वर्ग आ जाते हैं। इससे अहोभाग्य अहोभाग्य, हाँ क्या कहते हैं, अहोभाग्यम अहोभाग्यम नंद गोप ब्रजौ कसम जन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। अरे क्यों अहोभाग्यशाली है? जन्मित्रम परमानंदम, सबके मित्र कौन है? परमानंद स्वरूप हैं। क्या कहते हैं? अहोभाग्यम अहोभाग्यम नंद गोप ब्रजौ कसम हैं। ये नंदन ब्रज में सबकी परम मित्र कौन है? हैं कहते हैं पूर्ण ब्रह्म सनातन नित्य। तो ऐसे ही अहोभाग्य है। क्या अहोभाग्य है? ऐसे गुरुवर्गों के साथ हमारा हाँ परिचय हुआ, संबंध हुआ, वही हमारे परम मित्र है, क्योंकि वही हमें नंदनंदन की सेवा अधिकार दे सकते हैं, ब्रज की सेवा अधिकार दे सकते हैं। इससे अहोभाग्य है। तो आज यहीं तक रखते हैं, बहुत रात हो गया। कल हम लोग आगे और श्रवण कीर्तन करने का प्रयास करेंगे। गौर प्रेमानंदे। हरि बोल बयान मदन मोहन हरि बोल। रूप ब्रजर पत चाली बागा हरि बोल बयार मदन मोहन हरि बोल। जब गो ब्रजेन्द्रपुर हब गोपिकानोपुर तारा चरण मधुर मधुर तारा चरण मधुर मधुर भज बागा हरि बोल बयार मदन मोहन हरि बोल। विपिन विनोदा खेला संग तेरा कालेर मेला तारा चरण डुला तारा चरण ढोला
माँ के बागान। हरि बोल बोयार मदन मोहन हरि बोल। हरि बोल बोयार मदन मोहन हरि बोल। राधा कृष्ण रूपा माधुरी हरि बदनायन बरी। राधा कृष्ण रूपा माधुरी हरि बदनायन बरी। निकुंजरा द्वारे द्वारे निकुंजरा द्वारे द्वारे राहे बागा। हरि बोल बोयार मदन मोहन हरि बोल। तुमरा सब ब्रजवासी पूरा मनेरा बिलासी। तुमरा सब ब्रजवासी पूरा मनेरा बिलासी। काबे से कृष्ण रावंशी। काबे श्री कृष्ण रावंशी। शोने बागा। हरि बोल बोयार मदन मोहन हरि बोल। 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 एदे होयंती माकाले बाशी बाशी जमुनार जाले। एदे होयंती माकाले बाशी बाशी यमुनार जाले। जय राधा गोविंदा बोले। जय राधे जय गोविंदा। जय राधे जय गोविंदा। जय राधा गोविंदा बोले।
বলে বাসিবাগ হরি বল বয়ার মদন মোহন হরি বগ হরি বল বয়ার মদন মোহন হরি বগ কহে নরোত্তম দাস না পুরিল অভিলাষ কহে নরোত্তম দাস না পুরিল অভিলাষ কহে নরোত্তম দাস না পুরিল অভিলাষ কবে হম ব্রজবাস প্রভু কবে হম ব্রজবাস কবে হম ব্রজবাস কবে হম ব্রজবাস করিব গো হরি বল বয়ার মদন মোহন হরি বগ হরি বল বয়ার মদন মোহন করে বগ হরি বল বয়ার মদন মোহন হরি বগ হরি বল বয়ার মদন মোহন হরি বগ হরি বল 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 বয়ার মদন মোহন হরি বগ হরি বল বয়ার মদন মোহন হরি বগ রাধা মদন মোহন রাধা মদন মোহন মদন মোহন রাধা মদন মোহন জয় রাধা মদন মোহন রাধা মদন মোহন রাধে জয় রাধা গোবিন্দ রাধা গোবিন্দ রাধে জয় রাধা গোপীনাথ রাধা গোপীনাথ রাধে
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai Guru Deva, Jaya Guru Deva, Guru Deva, Jaya Guru Deva. Jai Bhakti Vedanta Srila Vaman Goswami, Bhakti Vedanta Srila Vaman Goswami. Jai Radha Vinod Bihari, Radha Vinod Bihari, Radha. Jai Radha Vinod Bihari, Radha Vinod Bihari, Radha. Jai Govardhana, Jai Vrindavana, Govardhana, Jai Vrindavana. Anitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. Nitai Gaur Hari